Here, MCQs, biochemistry and clinical pharmacy. So question 1. The degradative process concerned with the breakdown of complex molecules to simpler ones along with release of energy is. ठीक है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एनाबोलिज्म, ऑप्शन बी कैटाबोलिज्म, ऑप्शन सी मेटाबोलिज्म एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो यहाँ पे आंसर इज कैटाबोलिज्म. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द पावर हाउस ऑफ द सेल इज ऑप्शन ए yes mitochondria correct one. Next, the general formula of monosaccharides is CnH2nOn. correct, CnH2nOn. Okay. Then next, one of the following is not an aldose. So glucose, galactose, mannose, fructose. Aldose, which one is not aldose? Yes, which one is not aldose? Yes, fructose. Fructose is not aldose. Fructose is ketose. Fructose क्या है? वो ketose है. Okay. Next, two sugars which differ from one another only in configuration around a single carbon atom are termed. So A epimers, B anomers, C optical isomers, and D stereoisomers. What is the correct answer? Epimers. Epimers, correct. Epimers. तो epimers के बारे में यदि कहा जाए तो जैसे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर epimers at carbon 4. ठीक है. तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कार्बन 4 पे ही थोड़ा डिफरेंस होता है. ठीक है. यदि ग्लूकोज और मैनोज की बात की जाए, ग्लूकोज एंड मैनोज, तो ग्लूकोज एंड मैनोज आर epimers at carbon 2. ठीक है. तो ग्लूकोज और मैनोज में कार्बन 2 पे डिफरेंस आता है एंड ग्लूकोज और गैलेक्टोज पे कार्बन 4 पे डिफरेंस आता है. ठीक है. देन नेक्स्ट, न्यूटा रोटेशन रेफर्स टू चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन. करेक्ट, ऑप्टिकल रोटेशन. ओके. सो न्यूटा रोटेशन में क्या होता है कि ऑप्टिकल रोटेशन जैसे कि अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज होगा, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, तो उनका इंटर कन्वर्जन होता है. क्या होता है? इंटर कन्वर्जन. उनका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज होता है. अल्फा डी ग्लूकोज जिसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 112 डिग्री होता है और बीटा डी ग्लूकोज जो है उसका ऑप्टिकल रोटेशन 18.7 डिग्री होता है. वो दोनों चेंज होते हैं और चेंज होकर के 52.7 डिग्री पे कांस्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. तो अल्फा डी ग्लूकोज का 112.2 से 52.7 पे आ जाता है और जो बीटा डी ग्लूकोज होता है उसका ऑप्टिकल रोटेशन 18.7 डिग्री से 52.7 डिग्री पे आता है. तो अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन जो है ऑप्टिकल रोटेशन वो कम होता है और बीटा डी ग्लूकोज का बढ़ता है और दोनों भी एक जगह पे आके कांस्टेंट हो जाते हैं. तो यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज होता है न्यूटा रोटेशन. देन लैक्टेट फॉर्म इन मसल्स कैन बी यूटिलाइज्ड थ्रू कोरिस साइकिल. करेक्ट, कोरिस साइकिल हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया. राइट. देन नेक्स्ट, the number of molecules of ATP produced by the total oxidation of acetyl coenzyme A in PCA cycle is 12. Pyroxine. 6, 8, 10, 12. How many? कितने? 12. 12. Okay, that is 12. ठीक है. Next question. Synthesis of glucose from amino acids is termed as glycolysis, gluconeogenesis, glycogenesis and lipogenesis. क्या है? Synthesis of glucose from amino acid is termed as glycolysis. Gluconeogenesis. Correct, gluconeogenesis. What is the definition of gluconeogenesis? Gluconeogenesis की definition क्या है? So it is the synthesis of glucose from non-carbohydrate molecules. ठीक है. मतलब प्रोटीन है या लिपिड्स है, फैटी एसिड्स है, उससे यदि ग्लूकोज बनता है तो दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है. नेक्स्ट,
sulfur containing amino acid is, which one is the sulfur containing amino acid? Option methionine, leucine, valine, asparagine. कौन सा है? Methionine. करेक्ट, methionine is sulfur containing amino acid. मेथियोनिन के अलावा कौन सा है? दो और है जो सल्फर कंटेनिंग है, वो कौन से हैं? Cysteine and cysteine. Yes, cysteine and cysteine. Right. Then next, an amino acid in human is, sorry, an essential amino acid. An essential amino acid in human is, कौन सा essential? A aspartate, B tyrosine, C methionine and D serine. So which one is essential? कल हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको. Methionine. Correct. Methionine is essential amino acid. Okay. Then next, the protein present in hair is, hair में कौन सा प्रोटीन? Keratin. Correct. Keratin. Okay. Then next, control of urea cycle involves the enzyme A carbamyl phosphate synthetase, B ornithine transcarbamylase, C argininosuccinase and D arginase. तो कौन सा एंजाइम यूरिया साइकिल को कंट्रोल करता है? Carbamyl phosphate synthetase. करेक्ट, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज. ये एंजाइम, दिस एंजाइम कंट्रोल्स यूरिया साइकिल. क्या रोल है इस एंजाइम का? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एंजाइम? क्या करता है? कौन से स्टेप पे एक्ट करता है? क्या बनाता है? तो कार्बामाइल फॉस्फेट क्या करता है? कार्बामाइल फॉस्फेट बनाता है. किससे बनाता है कार्बामाइल फॉस्फेट? तो यहाँ पे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फेट आर कंडेंस्ड टू फॉर्म कार्बामाइल फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज. ठीक है, तो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फेट ग्रुप कंडेंस होते हैं टू फॉर्म कार्बामाइल फॉस्फेट. और ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट है ये फिर आगे ऑर्निथिन के साथ में कंडेंस होता है, कंबाइन होता है एंड वहां पे फिर आगे सिट्रोलिन बनता है. ओके, सिट्रोलिन आगे जाके बनता है. ओके, देन नेक्स्ट, अ कंपाउंड सर्विंग अ लिंक बिटवीन साइट्रिक एसिड साइकिल एंड यूरिया साइकिल इज, कौन सा? फ्यूमारेट. करेक्ट, फ्यूमारेट. ओके, तो यहाँ पे जो आर्जिनिनोसक्सिनेट फॉर्म होता है, ठीक है, आर्जिनिनोसक्सिनेट यूरिया साइकिल में, तो ये आर्जिनिनोसक्सिनेट क्लीव्ड होता है, ब्रेक होता है आर्जिनिन और फ्यूमारेट में. और यहाँ पे एंजाइम कौन सा आता है? तो यहाँ पे आर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम आता है. तो आर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में आर्जिनिनोसक्सिनेट ब्रेक होता है आर्जिनिन एंड फ्यूमारेट में, और फ्यूमारेट जाता है टीसीएस साइकिल में. ठीक है. Then next, primary structure of a protein is formed by Peptide bond. correct, peptide bonds. Okay, primary structure में peptide bonds होते हैं. What are peptide bonds? क्या है peptide bonds? क्या होते हैं? Simply peptide bonds are CONH bond. CONH. ठीक है, that is the peptide bond. Simply. Then next, kwashiorkor occurs when the diet is severely deficient in iron. Proteins. Correct. Proteins. Protein is correct answer. ठीक है, वेरी गुड. तो ये जो kwashiorkor होता है ये जनरली 1 to 5 इयर्स के चिल्ड्रन में होता है. चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 इयर्स में दिखाई देता है kwashiorkor, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज. देन नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या है? ए पामिटिक एसिड, बी ओलिक एसिड, सी लिनोलिक एसिड एंड डी टिरुसिक एसिड. तो व्हिच वन इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड? इट इज पामिटिक एसिड. क्या पामिटिक इज सैचुरेटेड फैटी एसिड. व्हाट डज इट मीन? सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है? Single bond. Yes, all are single bond. उसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं. दैट इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. नेक्स्ट, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड इज
A linoleic acid, B linolenic acid, C arachidonic acid and D stearic acid. इसमें नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है? Stearic acid. करेक्ट, स्टेरिक एसिड इज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होता है? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब It is synthesized in body. yes, it can be synthesized by the body. Right. Okay. Next, the cholesterol molecule is benzene derivative, phenolene derivative, steroid and straight chain acid. What is इसमें से क्या है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल? कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को? कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है. स्टेरॉइड, इट इज स्टेरॉइड. कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉल, देखिए नाम में स्टेरॉल है, नाम में स्टेरॉल है, तो इट इज स्टेरॉइड. ठीक है, तो द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इज स्टेरॉइड. ठीक है, स्टेरॉइड का नेम क्या है, केमिकल नेम? दैट इज साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग. हम लोगों ने डिस्कस किया था, साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग. ओके, then next one is the nitrogenous base in lecithin is. okay, तो क्या है, कौन सा बेस है लेसिथिन में? ए इथेनोलामाइन, बी कोलिन, सी सेरिन एंड डी बिटेन. तो ओके, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज लेसिथिन. लेसिथिन क्या है? व्हाट इज लेसिथिन? तो lecithin is glycerophospholipid which is a type of compound lipid. लिपिड में कंपाउंड लिपिड्स में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है लेसिथिन. ठीक है, तो लेसिथिन में कोलिन होता है. व्हाट डज इट कंटेन? इट कंटेन्स कोलिन. ठीक है, तो द नाइट्रोजनियस बेस इन लेसिथिन इज कोलिन. नेक्स्ट वन, elevated plasma level of the following protects against atherosclerosis. A chylomicrons, B VLDL, C HDL and D LDL. What is the correct answer? कौन है जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट atherosclerosis? या फिर इसमें से यस पार्डन which one? इसमें से कौन सा है लिपिड जो कि गुड लिपिड कहा जाता है? गुड लिपिड बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, हार्ट के लिए और काफी अच्छा है. High density. यस, इट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज सी. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज सी. ये हार्ट के लिए काफी अच्छा है. एलडीएल एलडीएल रेशो जितना ज्यादा रहेगा, एलडीएल एलडीएल रेशो जितना ज्यादा है उतना हार्ट के लिए बेनिफिशियल होता है. ठीक है, so LDL is a good lipid. The next one is sphingomyelins are phospholipids, natrolipids, alcohols and or glycolipids. क्या है इसमें से? sphingomyelins क्या है? तो sphingomyelins are phospholipids है. तो phospholipids में जो कंपाउंड लिपिड्स है, तो कंपाउंड लिपिड्स का टाइप है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स का एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स, सॉरी स्फिंगोमाइलिन्स. ठीक है, तो स्फिंगोमाइलिन्स जो है ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में आता है, तो दैट इज द फॉस्फोलिपिड्स. देन नेक्स्ट, बीटा ऑक्सीडेशन इज द मेन पाथवे यूज्ड टू लिबरेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ. तो अमीनो एसिड, बी फैटी एसिड, सी ग्लूकोज एंड डी लैक्टेट. तो बीटा ऑक्सीडेशन किसमें होता है? अमीनो एसिड में, फैटी एसिड. यस, फैटी एसिड इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू लिपिड मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट. तो सभी डिसीजेस लिपिड मेटाबॉलिज्म के एक्सेप्ट नीमैन-पिक डिसीज. करेक्ट, हार्टनफ डिसीज. ओके, हार्टनफ डिसीज क्या होता है? व्हाट इज इट?
It is amino acid related disease. हाँ, कौन सा अमाइनो एसिड नाम बता सकते हो? Tryptophan. यस, इट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ ट्रिप्टोफैन। और कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उसमें? डेफिशिएंसी ऑफ, Tryptophan pyrolase. करेक्ट, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज एंजाइम के डेफिशिएंसी की वजह से हार्टनस डिसीज होता है। एंड ये प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म का नहीं है। नेक्स्ट वन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन नॉर्मली रेंजेस फ्रॉम, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? ए ऑप्शन है 0.9 टू 0.99, बी ऑप्शन 1.005 टू 1.030, सी इज 1 to 1.001 and D option is 1.101 to 1.120. So what is the specific gravity of urine? D. D, correct. It is 1.005 to 1.030. D. Okay.